Okay, Assalamualaikum everyone. How is everyone? I am live. I'll just wait for a few members to join in, then we'll start the session. I hope everybody is safe because the Eid is near and everybody is starting going out without following any SOPs. So please be very careful and stay safe because there's this prediction that maybe the second wave is going to hit after Eid. So hopefully everybody is following the SOPs and trying to be minimal and in this Eid. Saying that, today's session, supremely proud and very happy that I got to this level at my page that now I'm about to interview someone who inspired me in just one meeting. I remember I was attending a workshop at AKU. Khan, it was about mental health, importance of mental health in education settings, and there I met this woman. Very, when you meet some people, they are very composed, grounded, here and now, focusing, very focused, know exactly what they can do, what are their जो उनके अंदर एक strengths होती है वो आपको दिख रही होती है. So I met this woman and she was so helpful and so encouraging. I remember मैं उस वक्त नई नई चीजों में थी with my son and she guided me then and there. Okay, ये step तुमने सही लिया है, ये step के लिए ये कर सकते हो. And then उधर ही उन्होंने मुझे 3-4 WhatsApp ग्रुप्स में ऐड कर दिया जो कि मदर्स का है. उसमें वो मुझे उसी वक्त इतनी हेल्प मिल गई. मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही थी अपने बेटे के लिए. आई couldn't find it to order. वहां पे सारी चीजें मिल रही. तो समटाइम्स आपको अल्लाह ऐसे लोगों से मिला देते हैं जो आपको सही डायरेक्शन का भी बता दें तो आपके लिए आधा काम हो जाता है. और यूजुअली हमारे हमारे इस कल्चर में हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है एज अ मदर, एज पेरेंट्स. और वो डायरेक्शन देने वाले आई थिंक बहुत मेरी नजर में बहुत ऊंचे होते हैं. वो अल्लाह ने हमें फरिश्ते दे दिए होते हैं. तो वही उन्हीं से इंस्पायर होके समझ लें थोड़ा बहुत ऐसी माँ बनने की मैंने कोशिश की, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर अपने मेंबर्स को, लोगों को जितना गाइड कर सकूं. So I'll not waste further time. I'll add her on the stream and then we'll start talking about her. Assalamu alaikum, Tuba. Walaikum assalam. Thank you for such a lovely introduction. I'm humbled. ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे के काम आने से ही सारे प्रॉब्लम्स हल होते हैं. तो मैं आपके कभी कोई मेरे काम आया था, फिर मैं आपके काम आ गई. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. नहीं, आई थिंक यही बात है उरूज की. ये ना एक आई थिंक मैं बहुत लकी थी कि मुझे कैसे तो मैं आपसे मिल गई. बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता चलता, उनको सही लोग नहीं मिल Yes. पाते, सही डायरेक्शन नहीं मिल Yeah. पाती. Yeah. So So I I think feel we now, yeah. as a special need community, things are becoming really, things are moving really forward, and things are becoming easier for newly diagnosed parents. So when my own son was diagnosed, I think 10 years back, it was a very bleak situation at that time, but I have seen the improvement over the years with my son being diagnosed, and with him growing up. तो अब चीजें अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं. ट्रू ट्रू. आई थिंक उस वक्त इतना अर्ली इंटरवेंशन का भी नहीं कोई प्लान होता होगा, इतना कुछ काम नहीं किया गया होगा. अब इस पे फिर भी रिसेंटली 2 years में बहुत काम हुआ है. Yes, and the thing is that now with these all Facebook groups, these WhatsApp groups, these platforms where you get information instantly has made a lot of difference. It has made a lot of difference for newly diagnosed parents, क्योंकि जिस वक्त my son was diagnosed उस वक्त situation बहुत different थी, और and I'm sure मुझसे पहले जो बच्चे diagnosed हुए उनके लिए और difficult होगा. तो बहुत डिफिकल्ट उस सिचुएशन थी. आपको एक होता था मीटअप पाकिस्तान के नाम से, इंटरनेट के ऊपर एक ग्रुप होता था जिसपे आप क्वेश्चन लिखते थे तो आंसर जो था वो 2 हफ्ते बाद आता था. तो बस it has been a bumpy road, but alhamdulillah things have got really better with my son and me now, alhamdulillah. So, Ruj, I want you to start with telling about yourself, who you are, what have you done, all things about you. Yes, so I was
I was Montessori trained and I was working in schools with preschool children before my son was born. But when he was born, I just took a break because I wanted to be around with him all the time. But obviously, he was born with challenges. He was different. I can see that there were many different things. So He's your my firstborn? journey towards special. No. He's the youngest. I have Okay. two daughters. One is mashallah 21, and the middle one Mashallah. is almost 18 now. So Okay. he was the youngest. तो जो मेरा शिफ्ट पैराडाइम शिफ्ट बिल्कुल हुआ वो मेरे अपने बेटे के बाद ही हुआ. Okay. उसके बाद फिर I started training myself and equipping myself to handle my own son better. So उस वक्त यहाँ पर ये भी है कि ट्रेनिंग्स बिल्कुल जो मेरे ख्याल में पहली ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई होगी वो सर मंसूर चौधरी ने करवाई थी माँ आयशा में. तो आई थिंक वहां पर मैं जो थी एज एज अ मदर आई अटेंडेड दैट ट्रेनिंग एंड इट हेल्प मी अ लॉट. उसके बाद फिर मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स जाके दुबई वगैरह से भी ली और उसके अलावा मैंने जो है चाइल्डहुड डेवलपमेंट और साइकोपैथोलॉजी ज़ियाउद्दीन से मैंने उसमें मैंने आई हैव बीन a diploma holder in that and I've done my Montessori training as well. So my background has been teaching along the way. लेकिन उसके बाद से फिर जब मेरा अपना बेटा डायग्नोज हो गया था तो जब स्कूलिंग का इशू आया ना तो I searched many schools. So I think I have searched when my son was diagnosed. I went to 21 schools of Karachi to get admission for my son. And the situation was at that time कि या तो किसी को पता ही नहीं था कि what autism is and how Yes. to deal Yeah. with all those issues, या फिर उनको पता था तो वो लोग वो लेते नहीं थे बच्चों को. तो मुझे मेरे लिए ना ये एक कहते ना एक ऐसी सिचुएशन मेरे लिए आ गई कि मैं कहती थी कि क्या इन बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं है कि जाए, क्योंकि माय सन इज not that severe that he should go to a special school. Special. Yeah. And he needs to go to inclusive schools. So वहां से फिर मुझको ये अंदाजा हुआ कि as parents by sitting outside we judge schools so much कि schools ये नहीं करते, schools ऐसे नहीं करते, schools को ये करना चाहिए. लेकिन क्या कभी हमने कोशिश करी है कि हम schools के अंदर जाके ये देखें वहां क्या प्रॉब्लम, वहां उन बच्चों अगर स्पेशल नीड्स बच्चे उन क्लासरूम्स में हैं, उन इंक्लूसिव स्कूल्स में हैं, तो वो क्या चैलेंजेस का सामना करते हैं वो स्कूल्स. So that's why I started working as a SENCO Special Education Needs Coordinator. I have been working. This is the third school where I'm working right now. उससे पहले मैं 2 स्कूल्स में मैंने 2-3 साल काम किया है. तो मतलब मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं ना तो आपको फिर ये अंदाजा होता है ओह इनके स्कूल्स में ये प्रॉब्लम्स है. ठीक है, वो हम बाहर से बैठ के कहते हैं स्कूल ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा. आई अग्री there are many things which can be done from school side also, but there are many challenges for school also. So the number one challenge which is untrained teachers. Resource teachers are also not trained, as well as ज़ाहिर कोई टीचर्स के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग तो ऐसी सच है नहीं मौजूद कि वो ये अगर आए तो ये सब कुछ वो हैंडल. So they learn by trial and error in most cases. They learn with their experiences. So फिर उसके बाद जो है मैंने स्कूल्स में काम करना शुरू किया and I have been lucky enough to be in touch with Dr. Aisha Irshad Mia at Aga Khan University Hospital, Department of Psychiatry. She's a child psychiatrist. So I take my son to her for my son's medication adjustment. So उन्होंने कहा कि हम जो है एक ग्रुप शुरू करना चाह रहे हैं पेरेंट्स के लिए and we want you to facilitate it. तो वहां से फिर जो है वो एपैक्ट फॉर्म हुआ और उसके एपैक्ट के बहुत सारे सेक्शंस हम लोग पहले तो उसको आगा खान के लोकेशन के अंदर ही करते थे, लेकिन नाउ दिस टाइम बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वी हैव डन दिस एपैक्ट सेक्शन ऑनलाइन नाउ.
and we are planning to keep it online for some time now. तो वहां पर फिर आइडिया हो कि आप जो है किसी प्रोफेशनल को बुलाएं और वो प्रोफेशनल 15-20 मिनट्स आपको प्रेजेंटेशन दे रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल a speech pathologist or an occupational therapist, and he is going to give a presentation, and then we become open to questions so that parents can ask whatever they want, and all of this is totally free of cost. We don't charge anything. The only purpose for APAC is to create awareness among masses and to gather resources for the parents so that they are able to go through this journey nicely and easily. Yeah. So for quite some time, I've been doing this. I've been trying to help out families. I've been working with teachers in schools. I've been training teachers, especially resource teachers. क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर चले ठीक है बच्चा मेन स्ट्रीम क्लासरूम में तो टीचर के साथ जो उसका इंटरेक्शन है, जो टीचर 1-on-1 काम कर रही है वो इतनी ट्रेन हो जाए कि उसके स्किल्स वो इतनी स्किल्ड हो जाए कि वो बच्चे को स्किल सिखा सके. And it's not just academics, Tuba. It's obviously it's a holistic approach. How to sit in class, how to walk in line, how to interact, how to socialize in the recess. But These are all the things. And I think from coming from a mother from an autistic child, this is what our target is mainly, that he is able to socialize, he mingles with each other. Academics तो मेरे back of the mind में भी नहीं होता. मेरे ज्यादातर जो होता है वो ये होता है. The thing is that academics is a very crucial part. वो आना चाहिए, लेकिन मैं तो हमेशा हर पेरेंट से ये बात बोलती हूँ कि जब एकेडमिक्स नहीं होते थे और लोग सिर्फ लकड़ियां काट के और पानी भर के जिंदगियां गुजार रहे होते थे, तो उस वक्त लाइफ स्किल्स होते थे जिसके बेस पे पूरी उम्र गुजर जाती थी. एकेडमिक्स नहीं होते थे. सो एकेडमिक्स इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बिहेवियर शुड बी मैनेज्ड. Child's day-to-day life, ADLs should be managed. So within my schools, I target all this to keep a holistic approach for a student to thrive in the inclusive school situation. So, Uruj, comparing from where you started as a mother, do you think that schools में इतनी awareness और teachers इतने better trained हैं कि inclusive schools खुल रहे हैं और क्या? Yes, inclusive schools खुल रहे हैं, लेकिन देखिए it's difficult process. It's not easy. बाहर तो देखिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिल रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है. तो यहाँ पर जो schools कर रहे हैं वो अपने बेस पे कर रहे हैं. They are not, they're not supported by the government, or they are not supported by. तो इन स्कूल्स में जो टीचर्स बच्चों के साथ काम कर रही होती हैं, आई रियली फील वी शुड गिव देम क्रेडिट, क्योंकि जाहिर सी बात है डील करना एक स्पेशल नीड्स बच्चे को इन अ क्लासरूम ऑफ 20 to 25 स्टूडेंट्स इज नॉट एन ईजी जॉब. इट इज डिफिकल्ट, बट यस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. So it's very important कि आप जो हैं as a parent facilitate करें teachers को और school को कि okay, these are my child's need, and you have, as a parent, you need to work as an advocate for your child. कि these are my child's need. This is what can be done in the classroom. This is how you can help in the classroom. Sometimes it happens कि टीचर हेल्प करना चाह रही होती है लेकिन उसको पता ही नहीं होता करना क्या. So this is very important कि as a parent आप you have to bridge that gap between the therapist and the school administration or the teachers, because now many schools have started hiring speech therapists, many schools have started hiring psychologists. So but all schools cannot do this. All schools cannot do this. So, creating a team in school is a big challenge for school owners or school administrations, but things are getting better and we should be positive कि हम जो है schools भी बेहतर हो रहे हैं. और देखिए बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं तूबा जो कि जरूरी नहीं है कि inclusive school जा सके. कुछ बच्चे होम स्कूलिंग में बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं जी स्कूल ही भेजना है. इफ योर चाइल्ड
is not thriving in school and if he's facing a lot of difficulty, so it's a very good option to homeschool. एंड आप वो देखिए जो आपके अपने बच्चे के लिए बेहतर है, वो चीज करिए जो कि जिससे कि आपका अपना बच्चा बेहतर हो रहा हो. आप बाय द बुक नहीं जा सकते इंक्लूजन में या ऑटिज्म में, बाय द बुक नहीं जा सकते. नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. So it is autism spectrum disorder की जब हम बात करते हैं, it's a spectrum and every child is same in many ways but different also in many ways. Yeah, that is where the tricky part is when you're dealing with autistic children, that not where every formula is going to work for every equation, because every child is different. And I remember when I was talking up to you about my son's school, and I was worried if the school is giving this dealing with my child in the good way. I remember you just asked me one question: is your son happy while going there? And I said yes. I remember you said that is more than enough right now. Your son is happy, that is what is important. Exactly. देखें, आप 5 स्कूल चेंज कर लें, मैं बहुत ज्यादा इस बात के खिलाफ हूँ कि जो लोग स्कूल्स बहुत जल्दी चेंज करते हैं. देखें, एक तरफ बच्चे को ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. जो यंग एज में बच्चा स्कूल जाता है वो उस जगह से अटैच हो जाता है. So for our children moving from here and there, unless and until कोई ऐसी बातों के, कोई थ्रेटनिंग बातों के आपको जी इस वजह से स्कूल चेंज करना, लेकिन अगर इफ स्कूल इज लिसनिंग टू यू, इफ स्कूल इज कोऑपरेटिंग विद यू, इफ स्कूल इज providing assistance to your child, that is the best school for the child, whether it's a big name or a nearby school in your neighborhood. Yeah, absolutely true. And I think this is where as parents we need to understand also the struggles that school faces while making it an inclusive school. It's not easy. Yeah, so work is being done, लेकिन वही बात है कि ये वाली changes एकदम नहीं आती हैं. They come very gradually and slowly. इंक्लूजन का जो आइडिया है वो ऐसा नहीं हो सकता है, वो टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप जाना जरूरी है. ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी बेस बहुत अच्छी बनाएं. एक ऐसे भी बहुत से मैंने टीचर्स देखे हैं जिनके पास पूरी ट्रेनिंग मौजूद है बट दे डोंट हैव एम्पैथी. ठीक है, वो टीचर उतना ही बेकार हो सकता है जितना कि एक अनट्रेन्ड टीचर. बिल्कुल. So it's a combination of empathy, acceptance and training. That's how a teacher for a special need child should be. So if empathy is not there, if they are not feeling what the child struggles with, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप कहीं पर भी भेज दीजिए, आप किसी भी जगह भेज दें, कोई फायदा नहीं होगा. सो सबसे पहले क्लासरूम में या किसी भी बच्चे को घर में आप डील भी कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिहेवियर मैनेजमेंट. Behavior management, if behavior is okay, if the child is not throwing tantrums, if the child is not hurting himself or others, if the child is not throwing things, ऐसे बच्चे की इन चीजों को मैनेज करके ही आप उसको स्किल सिखा सकते हैं. आप ये चाहे कि स्किल आ जाए और बिहेवियर मैनेज नहीं हो तो वो कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि ऐसे स्किल का क्या फायदा जो कि बच्चा अपनी रियल लाइफ में उसके लिए एप्लीकेबल ना हो. बिल्कुल. और इन दी एंड बच्चे को जनरलाइजिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं घर में भी कर सकता हूँ, मेरी सिटिंग टॉलरेंस कहीं भी नई जगह भी जाके हो सकती है. आई थिंक यही वो चीज है जो हमने फोकस करी. यस, any child anywhere, how much time does a child go for a therapy? The child will go once a week or maximum twice a week, or to the bare maximum की अगर हम बात करें तो it will go twice a week. उसके बाद पूरा टाइम बच्चा घर पे अपने पेरेंट्स के ही साथ. So it's not just I always say that to many parents, that it's not just newly diagnosed child, it's newly diagnosed parent also. So you have to change your parenting style a lot when your
child is diagnosed with any kind of disability. It's a challenge for you as well as for as well as for others also. Yeah. Yeah, absolutely. And Uruj, now coming from as a mother, we talk about you as a mother, you mentioned that you were seeing some red flags. So how did you, मतलब कौन सी वो चीजें थी जो आपने notice की, and what did you do next? देखिए actually obviously I have two daughters before Shahir. So Shahir was not talking was a red flag. He was very fixated to some things in my house. He was not talking. He was not making an eye contact. So the biggest alarm for me was that why was he not talking? 2 से 2.25 साल का हो रहा है. Why is he not talking? So I went to my pediatrician, my children pediatrician, and I said कि there's something wrong. He's not talking. तो उस वक्त उन्होंने मुझको ये बोला कि कोई ऐसी बात नहीं है. Boys are always late talkers. तो ये भी हमारे यहाँ बड़ी मिथ्स है कि लेट टॉकर्स होते हैं बॉयज. और आप घर में बात करें तो घर में बड़े बोलेंगे कि अरे इसके जो अब्बू हैं वो भी बहुत देर से बोले थे, इसके फैमिली में तो सब देर से बोलते हैं. ये सब भी हमारे यहाँ बड़ी मिथ्स है. ठीक है, तो मैंने उनको यही बोला. लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी अपनी फैमिली में डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो दे वर ऑल्सो फीलिंग दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट माई सन. So there, at that time, an article came in Dawn, a newspaper, which was talking about autism. And when I read that article, I said each and everything is in my son. So there is something wrong. Then I went for BRAT hearing test. And then I found out that yes, he is diagnosed with, उस वक्त तो PDD बोलते थे, persuasive developmental disorder, but now all of this has come in the umbrella of autism spectrum disorders. तो फिर इस तरीके से मुझको ये पता चला. तो देखिए, पेरेंटिंग जो है ना, वो इट्स नॉट अ स्किल जो कि एनीबडी इज बोर्न विद. Parenting is something which you have to learn with the age, and every age has its own challenges. So इस तरीके से जो है वो मुझको पता चला. फिर उसके बाद मैं कई जगहों पे मैं मिसगाइड भी हुई. मुझे किसी ने बोला कि आप बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मैंने करा दिया था. उन्होंने कहा ये तो स्पेशल नीड्स बच्चा है, तो मेन स्ट्रीम स्कूल जा ही नहीं सकता है. फिर मैंने वहां से निकाल लिया. फिर उस इंस्टीट्यूट में एक दिन मैं ऐसे ही चली गई, तो मैंने देखा कि बस मेरे बच्चे को उन्होंने जमीन पे बिठाया हुआ है और कार्टून्स लगे हुए हैं, और वो मेरा बेटा बुरी तरह बैठा हुआ रो रहा है. उस वक्त मैंने बस आई पिक्ड अप माय सन एंड आई डिडंट लुक बैक. और मैंने कहा कि ये मैं अपने बच्चे के साथ होने नहीं दूंगी. देयर शुड बी सम वे. देन जैसे आपने बोला कि आपको कोई मिल जाता है तो यू गेट दैट हेल्प. मुझे किसी ने नंबर शेयर किया एक स्पेशल नीड मदर का, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपके बच्चे को तो मेन स्ट्रीम स्कूल जाने की जरूरत है, और उसके साथ जो है यू हैव टू स्टार्ट हिज थेरेपीज व्हिच इज स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी. एंड देन आई स्टार्टेड, एंड देन ऑब्वियसली वही जो सब पेरेंट्स के साथ होता है कि आप जाते हैं, फिर यू बिकम यूज्ड टू ऑफ इट, और आप सब कुछ कर रहे होते हैं. लेकिन जो इसमें सबसे क्रूशियल बात है ना तूबा, वो ये है कि अगर आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें. ठीक है, आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं. जो आप बच्चों के शुरू के 3-4 साल होते हैं ना, जिसमें कि आप उनका बहुत कुछ बेहतर कर देते हैं, 80% of the parents are in denial in that time period. And then denial affects the child very badly. So if you're going to accept and if you're going to try कि अच्छा अब तो ये हो गया है, ठीक है, अब ऑटिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हो गई और कल खत्म हो जाएगी. Yes, the condition. ये भी एक मिथ है. Yes, the condition or the management is going to improve, but the child will be autistic for his whole life. The child will be autistic for her whole life. So we need to accept कि अच्छा आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गया, let's make his life better by structuring his day, by going to therapist, or as a parent you're the best judge. आप ये समझ जाते हैं कि कहाँ आप लेके जा रहे हैं, वहाँ आपके बच्चे को फायदा हो रहा है और कहाँ फायदा नहीं हो रहा है. Mother instinct is a very very strong thing. So
as use your motherly instinct a lot with your kids and you are going to see differences. तो क्योंकि ये वो किसी कोई भी जो थेरेपी है ना, जैसे अगर हम बात करें स्पीच थेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की या ABA थेरेपी की, they are not magic bullets which are just going to, you're going to fire it and it's going to make the child come to a point कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा. ये जो हमारे यहाँ ना नॉर्मल हो जाए बच्चा, नॉर्मल क्या होता है, हम में से कोई भी नॉर्मल नहीं है अगर देखा जाए तो. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद देखिए फिर आप जो है आप अपने बच्चे के साथ सही से काम करते हैं ना तो इम्प्रूवमेंट आती है. My son was till 3 years of age, there were no words, he was just babbling. And after that, mashallah, he is now on sentences. He can express himself. He can understand what I'm saying. And as a parent, you have to facilitate language all the time. And language doesn't mean the child is speaking. Language means he should understand what you're saying, and if he is communicating with some other form of communication tools, for example PECS हो गया या जो है वो इस तरह की कोई चीजें हो गई, तो यूज करें उसको, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे आप बच्चा इम्प्रूव नहीं हो सकता. मैंने किसी पेरेंट को ये बात बोली थी कि अगर आपके मुंह पे टेप लगा दें और आपको सारी बात समझ आ रही हो और आप अपनी बात ना कह सके, हाउ वुड यू फील? With autistic children, अगर वो बोल नहीं पा रहे हैं तो use those other tools for them to make sure they are able to communicate with you. And you know what, Aruj, I was so amazed when my son is still non-verbal, but when the ABA started, he's 6, and when the ABA therapist introduced PECS, I was amazed with the vocabulary he knows in his mind. I was amazed. इसको इतना कुछ पता है, बस इसके पास कोई मीडियम नहीं था to tell me कि इसको ये सब पता है. Exactly. I have seen, I have worked with many children जो कि PECS को इस तरह यूज करते हैं कि उनकी बुक है और उसमें से वो गए और जाके उन्होंने पिक्चर निकाली और जाके मदर को दी that they want this. So why not? If the child is, आप अगर नॉन वर्बल है बच्चा तो उसको आप फैसिलिटेट करें. इसी बात पे हम फोकस में टाइम निकाल देते हैं कि वो वर्ड्स बोल रहे हैं. ठीक है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी मिथ कहते हैं कि PECS पे आ जाएगा तो वो तो फिर एफर्ट ही नहीं लगाएगा, वो तो पिक्चर ही देता है. I have seen kids and I have worked with my own son, and कोई भी जब आप थेरेपी दे रहे हैं तो उसका जो बेसिक जो कहते हैं ना एसेंस है वो ये है कि आफ्टर यूजिंग इट यू हैव टू जिसे कहते हैं ना कि उसको फेड अवे करना बहुत जरूरी है. अगर आप उसमें डिपेंडेंट बना देंगे ना तो वो आप फेड अवे नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर शुरू में बच्चा पानी जो है वो सिपी कप से पी रहा होता है, पूरी उम्र तो सिपी कप से नहीं पिएगा ना, आप उसको ग्लास पे ले ही आते हैं. इसी तरीके से इंटरवेंशंस भी होती हैं कि आपने जो इंटरवेंशन यूज करवाई है वो अब आपका बच्चा सीख गया है, सो नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली फेड अवे दैट. So it goes with PECS also, it goes with visual schedules also. My son used to follow visual schedules when he was 2.5. There was a board with me, and his real pictures, I used to take his real pictures of the activities which he was doing, for example, eating, sleeping. वो सब मैं real pictures लेके उसका visual schedule बनाती थी. And then now, from that stage to now, he's on a stage where I just write in a diary what he needs to do the other day. And we write it together. We use the visual schedule together and we plan the activities together कि अच्छा कल हम ये करेंगे, हम ये इतने टाइम पे ये करेंगे. तो उससे ये होता है कि बच्चों की एंजाइटी जो है ना वो बड़ी मैनेज रहती है. जब उनको ये पता होता है प्रिडिक्टेबिलिटी, आप ऑटिस्टिक बच्चे की लाइफ में जितनी ले आएंगे उतनी ही उसकी स्मूथ ट्रांजिशंस होंगी हर चीज में. और जितना आप जो है उसको सीक्वेंस रखेंगे, उसकी एक्टिविटीज को सीक्वेंस रखेंगे, उसको ये पता होगा कि मुझे इसके बाद ये चीज करनी है, इसके बाद मुझे ये चीज करनी है. The more predictability, the lesser the behavior issues. Yes, बिल्कुल. And you know what, Uruj, when I started working on the structure and my son's routine, अगर मुझसे कभी कुछ मैं भूल जाती थी, मेरा बेटा वो एक्टिविटी का सामान ले आता था.
कि हमें My ये करना है इस वक्त, my son और मुझे remembers. क्लिक होता था, या Yeah, my son remembers which dramas I watch. you So, on those days, he knows which drama. So 8 o'clock, he just opens the TV. oh. Yeah, and I think and this is, I think ये हमें उनसे सीखना चाहिए कि how we can structure our Yes, day with so much yes, productivity. yes. So it's very And important. Anuj, I would say कि जैसे as a mother, what was like the key element that you needed to work on as a mother to see that progress in your child? See, the thing is that when we talk about structure, we want to structure our kids, but if we are not structured ourselves, how are we going to, inculcate structure in our children's life? So always, I feel always, जो है वो आप you need to अरेंज योर डे इन अ वे कि जिसमें कि आप अपने भी सब चीजें कर लें और अपने बच्चे की भी सब चीजें कर लें. इसके लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरत होती है. आई वॉज नॉट अ प्लान पर्सन बिफोर. आई वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. मैं इतनी नहीं थी जितना मैं शहीर के होने के बाद हो गई हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि इसके बाद मुझको ये करना है. अगर मैं इस काम को नहीं करूंगी तो मेरे अपने बेटे की चीजें मिस होंगी. For example, in the evenings, I do everything in the morning, and for evenings, I keep myself free for my son, so that I can, facilitate his education, his skills. So at that time, I try to keep myself as free as possible. And yes, when the children are young, it's very challenging क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत भाग दौड़ करना पड़ती है. लेकिन with time, when the child is going to cross 6-7 years of age, the child is going to calm down और फिर आपके लिए भी बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी. पहले छोटे बच्चों के साथ ये होता है ना, वो सोते हैं तो आप सो गए, वो उठे तो आप उठ गए, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है. लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े होने, लेकिन शुरू में जो आपने आदतें बच्चों में डाल दी, it's not just about autism, it's for everyone. जो शुरू में आपने आदतें डाल दी, they're lifelong. वो एक दफा आपने कहते हैं ना बेस सही बना दी तो बस फिर वो चलता, उस बेस के ऊपर बिल्डिंग बनती चली जाती है. एंड दैट बेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन. वो 3-4 जो साल होते हैं ना शुरू में डायग्नोसिस के बाद, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं. एंड मुझसे लोग कहते थे, मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि 4 to 5 आवर्स इंटरवेंशन पर डे देना चाहिए, मैंने दी है. मैंने शाम के टाइम में इस तरह से अपना काम किया कि आई यूज टू वॉच नथिंग एंड आई जस्ट यूज टू वर्क विद माई सन. And Alhamdulillah, now I'm getting the fruit out of it. Yeah. Now he's much settled, and there are many things which he do by himself now. So when Shahir was young, was he restless? कि उसकी sitting tolerance नहीं थी या things like that. It was, his behavior issues were very difficult to deal. He used to cry. There was no communication, and I was not able to understand why is he crying. So the crying could, it was like that कि it could go for hours. 5-5, 6-6 घंटे रोता था. और किसी तरह में हम हॉस्पिटल लेके जाते थे, वो सब चेक करते थे, सारे वाइटल्स चेक होते थे और वो कहते थे बिल्कुल ठीक है, क्यों रो रहा है, आप नींद की दवा दे दे, थोड़ी देर सो जाएगा. सो समझ नहीं आ रहा होता था. और शुरू में बहुत ज्यादा रेस्टलेस, देयर वाज नो रीडिंग में प्रॉब्लम था, राइटिंग में प्रॉब्लम था, स्कूल में बिहेवियर इश्यूज थे, ये सब चीजें. लेकिन आप स्ट्रक्चर करते हैं, आप विजुअल्स यूज करते हैं, इट वर्क फॉर मी अ लॉट. So my son is, it's more with autism and ADHD together. So right now his autistic symptoms are very low, but ADHD is still there, which I manage. और जो है शुरू में जो थे वो ADHD इतना नहीं दिखता था, autistic वो बहुत थे कि there was no eye contact, there were repetitive behaviors, there were fixations, there were जो है वो किसी भी तरह से रूटीन में जरा सा डिफरेंस आ जाए तो it was a havoc for all of us to how to deal with him for after that time. अगर वो चीज उस वक्त नहीं हुई है तो these were the difficulties which were in the start, but educate yourself, empower yourself and work with your kid. That's the only. किसी थेरेपिस्ट के पास कोई चीज का हल नहीं है. ये
हल सिर्फ पेरेंट्स के ही पास है. The बिल्कुल. more you are going to train yourself and implement yourself, the things are going to get better. या एंड यहाँ पे जो एक ये प्रॉब्लम है ना कि पेरेंट्स चले कुछ भी करके थेरेपी के लिए अगर मान भी जाते हैं, थेरेपी के पास थेरेपी के लिए भेज रहे हैं, फिर खुद कुछ नहीं करते कि भाई हम तो पैसे दे रहे हैं ना थेरेपिस्ट को. So 1 hour or 45 minutes of session is not going to make any difference in the child's life until and unless you bring those therapeutic interventions at home, practice it whole day. For example, अगर आप बच्चे को instruction following सिखा रहे हैं थेरेपी में, तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आप घर पे भी करवाएं. अगर आप बच्चे को काउंट एंड राइट सिखा रहे हैं तो आप बच्चे से कोई क्वांटिटी घर पे भी मांग के देखिए. Give me 2 spoons or give me 2 pencils, or bring one cup from there or bring one brush from there. So जब मेरा अपना बच्चा छोटा था तो मेरा पूरा घर लेबल्ड था, हर जगह पिक्चर्स थी. मतलब ऑब्वियसली माय हाउस इंटीरियर वाज गॉन, लेकिन हर जगह पिक्चर्स थी टू फैसिलिटेट माय सन, एंड दैट्स हाउ हिज वोकैबुलरी इम्प्रूव. कि मैं हर जगह उसको पिक्चर पे पॉइंट करवाती थी और पॉइंट करवा के मैं बोलती थी कि दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट. सो माय वॉशरूम वाज ऑल with lists and visual schedules and how to take a bath, how to use the toilet, how to wash hands. I always used visuals and then I weaned it off. I always faded away. जब उसने वो सीख लिया मैं वो पिक्चर हटा देती. तो राइट तो इट, और अभी भी अगर मुझको कोई उसको रिमाइंडर्स देने होते तो आई ऑलवेज राइट ऑन a piece of chart paper or a paper and I paste it somewhere so that he can read it throughout the day so that he can process that information, what I want from him. बिल्कुल. एंड आई थिंक पेशेंस इज द की. कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, मुझे लग रहा होता है वो बहुत इतने 1 महीना हो गया कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, 2 महीना हो गया. आई थिंक ये ना सालों की मेहनत है, एक बच्चे को समझने में ही टाइम लग जाता है. और देखिए आप ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये नहीं हो सकता है कि आप जो है एक चीज कर रहे हैं और उससे सब कुछ ठीक हो जाए. एक होलिस्टिक अप्रोच रखना, अच्छी डाइट देना, एक रूटीन मेंटेन रखना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना, बाहर लेके जाना, पार्क्स लेके जाना, मॉल्स लेके जाना, शादियों में लेके जाना, एक्सपोजर देना टू डिफरेंट सिचुएशंस. इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आई नो मेनी पेरेंट्स जो कि बच्चे को कहीं लेके ही नहीं जाते हैं क्योंकि वो बिहेवियर इश्यूज हैं, वो जो है हैंड फ्लैपिंग हो रही है. तो इट्स teach your child. My son also flaps sometimes. He does finger movements and use his aerial view to watch his hands, but I have trained him okay, this is the behavior which you can do at home but you cannot do it outside. So these are, और मैं किसी के पास जब शुरू में मेरा शहीद डायग्नोज हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा था ये बिल्कुल एम्प्टी हार्डवेयर की तरह है. Whatever you're going to feed, he's going to store. He's just like a blank paper. Whatever painting you're going to make on that paper, it will form. तो इस तरह की चीजें बहुत करने की जरूरत है. इस तरह की एक्सपोजर दीजिए. 5 मिनट अगर आपका बच्चा मॉल में बहुत रोता है, my son used to was very scared of crowds. क्राउड जहां है वहां रो रो के बुरा हाल हो जाता था. ठीक है, और लेकिन 5 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था कि अच्छा मैं मॉल लेके जा रही हूँ. 5 मिनट्स में मैं लेके बाहर आ जाती थी. मैं अपनी शॉपिंग को और अपने बेटे की आउटिंग को डिफरेंट रखती थी. When I shop, I never used to take him, but when I used to take him, I don't do anything else other than facilitating him in that situation. So it's very important. Yes. और जब हम लोग बहुत छोटी एज में थोड़ा जैसे एज यू सेड, अगर हम बच्चे को समझें कि अगर वो फॉर इंस्टेंस क्राउड अवॉइड करता है या कोई भी ऐसी चीज है जो उसको ट्रिगर करती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका स्टिमुलस दें, तो आई थिंक बाय द टाइम विद द एज वो उसको इंटीग्रेट हो जाता है विद द चाइल्ड और वो और नॉर्मलाइज हो जाता है उस चीज से. बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्कूल की भी सिचुएशन ऐसी होती है कि स्कूल में सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं. ठीक है, आज एक क्लास में कल टीचर चेंज हो जाएगी तो चेंज का तो आदि आपको करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर तो फिर आप क्या कर सकेंगे. द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एनीवेयर.
So even आपको मैं बताऊं, my son had so much difficult fixations that I cannot even take him. मैं जिस वॉशरूम में उसको लेके जाती थी बस मैं वहीं लेके जा सकती थी, घर का सेम दूसरा हियर। वॉशरूम भी वो यूज नहीं करना चाहता था. So start with home. Small steps are going to take you towards your goal. There are no big jumps or shortcuts. That's what I have learned in all these years. बिल्कुल। और पता है मुझे लगता है रोज ये चीज मैंने भी लर्न की है, मैंने भी एज अ मदर ये, इवन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में, जब आप इन मदर होते हैं ना आप भूल जाते हैं अपना बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल. टैग। तो आई थिंक ये भी मैंने भी गलती की थी कि मेरा दिमाग में था कि जब तक ये बोलेगा नहीं इसका मतलब वो सीख नहीं रहा। तो मैं सिर्फ Yes. उस पर फोकस करती थी, वो जो छोटे छोटे मुझे इम्प्रूवमेंट शो कर रहा था वो मुझे दिखते नहीं थे। तो Yeah. एज अ मदर देन आई रियलाइज्ड कि ओके ही इज कम्युनिकेटिंग, मैं कम्युनिकेशन को क्यों सिर्फ बोलने पे डिपेंड कर रही हूँ, कम्युनिकेशन तो Yes. और भी बहुत सारे तरीकों से हो सकती So, in the start, I used to take him to Ziauddin, and there was Amna Siddiqui to whom my son went. So, the first thing she said to me that you have to work on communication. Language or speech is going to follow it to you from there. The most important thing is communication, pointing, making an eye contact. Making the parent understand what the child wants, and you understanding what child is going through. So these are the key issues which we need to target in early years. And in later years, there are other challenges, obviously. Up now, I feel my son has crossed age of 10. So now skill development is a big challenge for me because, early intervention पे तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन skill development की कोई ऐसी हमारे पास जगहें नहीं है. कोई हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पर कि हम जो है वो बच्चों के स्किल्स पे काम करें. एकेडमिक्स तो ठीक है, पार्ट ऑफ एकेडमिक्स कर रहा है, प्लस माइनस कर रहा है, लेकिन प्लस माइनस वही फायदे का है जो कि वो मनी को लेके कर सके और दुकान पे खड़े होके कर है। सके. बिल्कुल। एंड आई थिंक व्हाट यू सेड कि जिसमें बच्चों को एक्सपोजर दें, आई थिंक ये बच्चे इसी से सीखेंगे। अगर मैं तो बिल्कुल. कहती हूँ आप अंडा डबल रोटी भी खरीदने जा रहे हैं आप लेके जाएं, आप बच्चे को यस. बताएं कि ये क्या है, डबल रोटी का मतलब क्या होता है, ये क्यों नेसेसरी है, चीजों के हम पैसे देते हैं तो बिल्कुल हमें एक चीज मिलती है। आई थिंक ये सारी बिल्कुल. चीजें तो एंड द वे दे लर्न इज अमेजिंग। यस, सो माय सन इज नोज हिज वेज. जैसे अगर हम जो रास्ता है, अगर आप उसका रास्ता चेंज करने को परेशान हो जाएगा कि क्यों दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, एंड ही नोज his way to school and school to home. He knows from which way we go to school and from where do we come back home. तो ये सारी बात उसको पता है, और आप एक्सपोज करें कि ओके दीज आर, जितना आप बात करेंगे, जितना लैंग्वेज फैसिलिटेट करेंगे, जितना आप इंटरेक्शन करेंगे, द चाइल्ड इज गोइंग टू इम्प्रूव. एंड Ruj, एज अ मदर कहाँ पे डिड यू हैड प्रॉब्लम लाइक फ्रॉम द सोसाइटी, जो सोसाइटी से एक प्रेशर आता है ना, जी. you having Shahir as the only son, मेरा भी एक बेटा है the only son, तो कैसे इस नेगेटिविटी को आपने अफेक्ट होने से रोका टू यू एंड योर देखिए चाइल्ड? देखिए, मैंने तो सिर्फ ये किया कि अब जैसे ये इतना रोता था तो सब कहते थे कि शायद इसके ऊपर, मुझे किसी ने बोला कि किसी इसके ऊपर कोई असर है, या इट्स कुछ कुछ मसला है. तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है अल्लाह का नाम ना लें, आप सब चीजें करें, जो दुआ दवा दोनों ही करने की जरूरत होती है. तो उसका सिंपल हल ये है कि आप, जो लोग आपको आपके बच्चे के बारे में या आपके बारे में कोई जजमेंट पास कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि उनको पता ही नहीं होता. अब उनको ये जब पता ही नहीं है कि ऑटिज्म क्या होता है, या उनको ये नहीं पता कि बिहेवियर चैलेंजेस क्या होते हैं, तो आप ऐसे लोगों से की बात से हर्ट होकर अपना अपना पूरा दिन ना खराब करें. इट टेक्स टाइम, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि आप बस बात सुने एंड जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन व्हाट योर गोल्स आर. क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे ना फिर बहुत प्रेशर में आके बच्चों को, देन दैट्स द पॉइंट There वेयर are दे many स्टॉप टेकिंग देम pressures. टू There are एनी pressure from ओकेजन। in-laws. There are pressure from husbands. There, या sometimes ऐसी भी relationships मैंने देखी हैं जिसमें कि शादी खराब हो गई है बच्चे की वजह से, और या हस्बैंड जो है उसने छोड़ दिया है, और इस तरह की बहुत चीजें होती हैं. सो especially parenting for a mother is not an easy job. You after some time अपना भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये मैंने बहुत अरसे बाद रियलाइज किया, क्योंकि शुरू में जब डायग्नोसिस मेरे अपने बच्चे का हो गया था तो आई वाज सो मच इनटू इट दैट आई निग्लेक्टेड माई सेल्फ टू अ पॉइंट कि मुझको
बहुत ज्यादा जो है वो फिर थकन होना शुरू हो गई थी मुझे, मैं आई वाज डाउन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ केयर फॉर योर सेल्फ एज अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल नीड चाइल्ड. आपको अपने आप को, क्योंकि आप खुद सही होंगे तो ही आप बच्चों को देख सकते Yeah. अब नींद पूरी नहीं हो रही होती तो आप हैं. इरिटेटेड हैं, अब वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल, बच्चे पे निकलती है. बिल्कुल. तो ये सब जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपने को भी थोड़ा देखें, क्योंकि फिर एक वक्त आता है केयर गिवर बर्नआउट आपको शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी केयर गिवर मोस्टली सिचुएशंस में मदर्स ही होती है. Motherhood. जी. ठीक है, अब उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका कोई सिर्फ एक तो चीज है नहीं ना कि आपने बच्चे को स्कूल भेज दिया और स्कूल से वापस आ गया, आपने होमवर्क करा दिया, दैट्स इट. You have to maintain therapies, you have at school with the resource teachers, you have to target the child's diet, everything मिलके फिर वो बहुत overwhelming हो रहा होता है पेरेंट्स के लिए, इसमें कोई शक नहीं. So take care of yourself also, take out time for yourself also, it's important and I have learned it the hard way. मैंने लेकिन ये मैं अब एडवाइस सबको जरूर करती हूँ कि अपने आप को उस पॉइंट पे ना पहुंचाएं कि आप खुद बीमार पड़ जाए. बिल्कुल. एंड आई थिंक एज अ मदर हम लोगों को मेंटली इतना स्ट्रांग होना है, मदर ऑफ स्पेशल नीड्स, कि अगर हम Yes. अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस ना करें, जिसमें लैक ऑफ स्लीप हो गई, खाना नहीं खाना, सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेम, ये वो सारी चीजें जिससे ऑलमोस्ट सारी मदर्स गुजरती हैं ऑफ स्पेशल नीड्स. बिल्कुल, बिल्कुल. और दूसरा ये कि अपना जो है वो बच्चे के टारगेट्स बनाइए. यू नो, देयर शुड बी व्हाट यू वांट टू अचीव, डिस्कस इट विद द चाइल्ड्स थेरेपिस्ट एंड मेक टारगेट्स कि अच्छा अब मुझे ये चीज सिखानी है, अच्छा अब मुझको इस चीज के ऊपर काम करना है. तो जब आप टारगेट्स बना के बढ़ते हैं ना, तो फिर आप एक टारगेट आपके पास होता है तो आप और चीजों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं मुझे इस टारगेट को अचीव करना है. So, you know, make goals for yourself and for your child. या एंड रियलिस्टिक गोल्स, जो कि आपको Realistic पता है goals, कि smart ताकि वो goals. पूरा भी कर सके बच्चे, क्योंकि कभी Yes, कभी ना पेरेंट्स बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं, बच्चा नहीं बहुत कर पाता. unrealistic. You know, I deal this all the time. So, अब अगर फर्ज करें कि आपके बच्चे को जो है वो अभी पैडल चलाना, साइकिल करनी है, and you're expecting the child to ride a bicycle. So it's unrealistic. And if the child is not able to understand the child's receptive language is not there, and you're expecting the child to speak, it's unrealistic. And same goes for academics, which I see in schools and I work in school. So in academics, people expect a बिल्कुल ग्रेड लेवल का पढ़ ले. भाई अब ग्रेड लेवल का पढ़ने को तो जाहिर सी बात है हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हर बच्चे का अपना समझने का तरीका है, अपना पढ़ने का तरीका है. तो कुछ चीजें छोड़े भी, क्योंकि आप बच्चे खुद से भी सीखते हैं. हर चीज आप नहीं सिखा रहे होते, कुछ बच्चे एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलिस्टिक गोल्स बनाएं और ऑन एंड ऑफ थेरेपिस्ट से डिस्कस करते रहें वेयर योर चाइल्ड स्टैंड, सो यू शुड नो द कंप्लीट पिक्चर वेयर योर चाइल्ड इज. कभी कभी ऐसा होता है कि आप उल्टा आप थेरेपिस्ट को गाइड कर देते हैं कि ये चीज आप इस तरह करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि the parents are the best resource to tell what is the main issue or what is the main concern with the child. So parents को जो है ना वो बहुत ज्यादा उनसे इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पता चलता है कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है. बिल्कुल. एंड आई थिंक ये हम लोगों को एज अ पेरेंट कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना है ऑन द थेरेपिस्ट, बिकॉज हम No. लोग हैं जिनके पास हम बच्चा मुस्तकिल है, हम लोग उसकी आई थिंक द मेन टीचर एंड द मेन Yes. थेरेपिस्ट हैं. वी नीड टू Yes. लर्न, वी नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द थेरेपिस्ट, ओके घर में मैं ये कैसे इम्प्लीमेंट करूं एंड देन स्टार्ट बिल्कुल, वर्किंग ऑन. बिल्कुल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो टॉप ऑफ द गेम पे रहें आप अपने बच्चे को. आपको उसकी हर बात पता होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सन, आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग विद माई सन टू मेक श्योर कि ये रीडिंग सीख ले. ही वॉज नॉट एबल टू लर्न रीडिंग. मेरे कराने से मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए, मैंने दुनिया की हर चीज की. रीडिंग उसको तभी आई जब मैं एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास गई. He was unable to do reading by himself or by my teaching. So sometimes you need that help. या
बिल्कुल। और उरूज, आई वुड हियर आस्क अ क्वेश्चन जो कि मैं अक्सर डिफरेंट ग्रुप्स पे इस बारे में पढ़ती हूँ। देयर आर डिफरेंट डाइट प्रोटोकॉल्स, देयर आर डिफरेंट मेडिकेशंस, हर्बल और ये सारी चीजें दैट Yeah. पेरेंट्स यूज विदाउट इवन गोइंग टू अ डॉक्टर। So what do you have to say as a mother and as a professional about it? देखिए, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के साथ GFCF डाइट चल जाए या हर बच्चे के साथ आप. दीज आर थिंग्स विच आर नॉट एविडेंस बेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू हैव टू, यू नो, यू कैन ट्राई. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को एक कंप्लीट होल मील डाइट देनी चाहिए. ठीक है, आई फील दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. आप अनहेल्दी, देखिए शुगर तो सभी के लिए बुरी है ना, कोल्ड ड्रिंक तो सभी के लिए बुरा है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगर जंक आप खिला रहे हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये तो सभी के लिए बुरा है. सो अवॉइड दीज थिंग्स. बट जो डाइट्स हैं वो कुछ बच्चों को सूट कर भी जाती हैं. सो ऑलवेज ट्राई, बट कीप योर आईज ओपन. ये नहीं होना चाहिए कि जी किसी ने बोला है तो बस जी मैं ये करवाऊंगी, वो भले बच्चे का उससे हशर बिगड़ जाए. क्योंकि यंग एज में जो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं वो फिर लेटर एजेस में नहीं जाती. बिल्कुल। सो बी और वेरी पता है मैंने रोज जो नीचे कॉशियस ऑन ग्रुप में व्हाट यू आर पढ़ा है, डूइंग. जिस चीज से मैं डर जाती हूँ वो ये कि पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस लिख देते हैं कि ओके मैंने ये चीज ट्राई की, मैंने ये डाइट या मेडिकेशन बुरा या हर्बल जो एक्सपीरियंस भी कोई है। नहीं लिखता ना तूबा. देखिए, बुरा हाँ एक्सपीरियंस तो कोई नहीं लिखता है. यू आर ऑलवेज गोइंग टू हेयर द स्टोरीज, द विनिंग स्टोरीज. यू आर नॉट गोइंग टू हेयर कि उस डाइट से बच्चे का कबाड़ा कैसे हो गया था. बिल्कुल। यू और आर फिर नॉट गोइंग. पेरेंट्स वो पढ़ते हैं और उसको फिर अप्लाई कर देते हैं अपने विदाउट इवन अप्लाई टॉकिंग टू आप अ करें, प्रोफेशनल। अप्लाई आप करें. अगर वो, इफ इट्स वर्किंग विद यू, गुड. बट कीप योर आईज ओपन कि अगर वो बच्चे की बहुत डेफिशिएंसी हो रही है या किसी चीज की ऐसी डेफिशिएंसी हो गई है जो कि आप फिर लेटर एजेस में कवर नहीं कर पाएंगे, तो बी वेरी कॉशियस इन व्हाट यू आर डूइंग. For me, I did GFCF diet for 6 months, but I saw no difference in my son, and I shifted him to soya milk instead of giving the plain milk. So with soya milk, when he started drinking that, he had runny nose for months actually. And I was not able to see कि ये runny nose क्यों है. लेकिन फिर मैं उसमें बहुत ज्यादा सर्च करती रही तो मुझको ये पता चला कि सोया मिल्क से कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, और उस एलर्जी से जो नोज के अंदर सॉफ्ट लिगामेंट्स होते हैं उसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. And due to that, my son had runny nose. क्योंकि मैं हर दवा खिला के देख ली थी, वो runny nose जाती नहीं थी. फिर उसके बाद the day I stopped giving him soya milk, the day he was fine. उसके बाद से कभी नजला भी नहीं हुआ. So be very cautious in what you are doing. आजकल वही बातें, देखिए दो चीजें हो गई हैं फॉर नाउ डेज, फॉर अस पेरेंट्स. पहले इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी, अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इन दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड यू हैव टू पिक एंड चूज व्हाट कैन वर्क फॉर यू. या जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आप देखिए हर तरह की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स शेयर कर रहे होते हैं. एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉर यू और फॉर योर चाइल्ड. या You have to pick and choose what is going to work for you. You have to pick and choose what is going to help you. So every case is different. So every intervention has to be different, and it's specifically designed for the specific child. So या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी आप डाइट दे रहे हैं, जो भी आप चीजें दे रहे हैं, उसको सोच समझ के दें. और अगर आपको ये लग रहा है उससे फायदा नहीं हो रहा है तो मूव क्विकली. ये ना करें कि उसको एक्सटेंड किए चले जा रहे हैं और आखिर में फिर फायदे से ज्यादा डैमेज हो गया, एंड देन यू मूव ऑन. हो गया बिल्कुल। या बिल्कुल। एंड एज यू सेड कि ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो वी डोंट इवन नो कि विल Yes. इट 100% वर्क और नॉट. दैट्स Yes. द की पार्ट. Yes. So for some children, I always try to go for the healthier version things. For example, cod liver oil जो है वो मैंने अपने बेटे को बहुत दिया है. इस तरह की चीजें नहीं है जो कि हेल्थ, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. इंस्टेड के मुझे ऐसा लगता है कोई जो चीजें रोकते हैं ना, it's a very tricky thing to do. So या I personally I don't agree that much with these diets.
लेकिन अगर आपके अपने बच्चे के साथ इफ यू थिंक इट्स वर्किंग देन यू आर द बेस्ट जज एज अ पेरेंट. Yeah. Okay, Uruj, with your son Shahid, did he had any sensory processing issues? Yes, so the sensory issues were a lot when I started therapy with him. There were many issues. For example, touch का अभी भी है, गीली चीजें छूने में बहुत मुश्किल होती है. ठीक है, उसके अलावा उसका बहुत ज्यादा था. जो है फिक्सेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि अगर फर्ज करें कि एक टॉय हाथ में पकड़ लिया है तो वो देना ही नहीं है, वो वापस ही नहीं रखना. ठीक है, तो और जैसे इसको कुछ ना कुछ हाथ में चाहिए होता था. सो व्हाट आई जस्ट वर्कड इट आउट, वर्कड दीज स्ट्रेटजीज आउट माई सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ज्यादा हैंड फ्लैपिंग करता था, तो आई ऑलवेज यूज टू गिव अ टॉय इन हिज हैंड विच इज कॉज एंड इफेक्ट टॉय. फॉर एग्जाम्पल, कार है तो उसका उसका डोर खुल रहा है और बंद हो रहा है. So he can manipulate that toy and his direction for hand flapping was shifted to the toy. Okay. Hmm. ठीक है, और जब वो टॉय उसने ले लिया तो स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट एंड स्टिल आई गिव हिम समथिंग इन हिज हैंड to hold. He needs something to hold all the time. He needs something to touch all the time. So I always give him things जो कि वो hold कर सके, जो कि वो manipulate कर सके. So it Yeah. differs with every child. कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा deep pressure की जरूरत होती है. ठीक है, तो आप you have to learn those techniques and you have to give them at home. So और I have what I have done that जो उन techniques को मैंने ना इस तरह से incorporate कर दिया था कि when he used to take a bath, before that I used to provide him with those compressions on his joints. ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, जैसे कि लोशन अगर आप लगा रहे हैं बच्चे के, तो आप प्रेशर के साथ थोड़ा लगाएं. इस तरह की चीजें करके जो है वो आपकी बच्चे की सेंसरी नीड्स भी इंप्रूव होती है. एंड व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, फिर उसमें आई फील कि एक्सरसाइज इज वेरी क्रूशियल. आप किसी भी तरह Yeah. की कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म को इंक्लूड रखें. So nowadays we are all are facing a big challenge कि हम घरों में हम कहीं जा नहीं सकते हैं कुछ भी करने के लिए. Parks were a very big outlet for most of our children कि हम पार्क ले जाते थे, वहां बच्चे भाग दौड़ लेते थे. लेकिन ये कि आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है. बिल्कुल. तो आई थिंक घर में भी बहुत सारी ऐसी तरीके हैं, फिजिकल पोस्चर्स हो गए, एक्सरसाइजेस हो गई, जो कि हम Yes, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. incorporate कर सकते हैं, लेकिन it has to be consistent. It has to be a consistent daily routine in whatever they are doing. Yeah, absolutely. And Uruj, in the end, before we wrap up, do you want to say anything to the members other than what you have said? So the key is consistency with everything and be empathetic. And always we talk about equality. I always talk Hello, Uruj. Are you there? I think her net is not working. Yeah, I think her net is gone. I was about to wrap up anyway, so I'll just wait for a few minutes. Maybe she'll join back, so I'll conclude the session. Anyways, so I hope the guys आप लोगों को भी उरूज से मिलके उतनी ही मोटिवेशन मिली होगी जितनी कि मुझे मिली थी. बिकॉज हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली गाइड करने वाले लोग इतने नहीं मिलते जितना हमें मिस गाइड करना या फिर हमें नेगेटिविटी वाले
चीजें ज्यादा मिलती हैं, unfortunately. But there are good people around. We need to just keep our eyes open and hope for the best. As Uruj said, consistency, being empathetic towards your child, this is what is important. Don't only rely on therapists. Yes, we need them. It is very important. I think she's back. I'm Hello. sorry. I'm really No, sorry. no, The no, no. light It's okay. actually switched off. No, no, I understand. It's everywhere. The whole city is Yeah, being affected by that. yeah, So yeah, you were saying about being consistent and being empathetic. yes. So it's the key, and re- understand how your child is. Every child is different, and you need to understand what your child is. Don't compare your child to others. Everybody Yeah, has their own journeys and everybody progress at their own level. But this is for sure that children with autism do progress and they can do wonders. So, believe in those wonders, that those wonders can happen with all of us. absolutely. Thank you so much, Uruj, for such a positive and fascinating session. You're always, whenever I talk to you, I always get so motivated. और मुझे इतनी hope मिलती है when I talk to you. So I hope कि लोगों को भी ये मिली होगी definitely. Thank you so much. Thank you for having me. It was wonderful talking to your audience. And inshallah, let me know if I can be of any help anywhere. Of course, I will stay in touch with you. And there's so much love in the comments. You can check it out. There are Okay. people who are giving so much love to you. Okay. Chala. Okay. Thank you Thank so you much, so much. Uruj. Allah Hafiz. Allah Hafiz. So, guys, I'll just wrap up now. And those who have missed it, please do watch it again. I'll upload the YouTube link also. Because I think as parents, we need to keep in touch and keep uh, hearing these success and inspiring stories of mothers जिनसे हमें थोड़ी hope मिलती है क्योंकि we are not alone. Everybody has struggled with it. Everybody is struggling. As she said that she has come out of many struggles, but it's a part of his son's life, our children's life. We need to teach them how to deal with the daily lives along with the diagnosis. So be empathetic towards your children, love them unconditionally. I know you do, but sometimes we do focus on just fixing things instead of enjoying what Allah have blessed us with. So on that note, I'll just say Allah Hafiz and take care. I'll see you guys in the next session.